نعرہ رسالت بآواز بلند خاندان زہرا کے احسانات کو تسلیم کرتے ہوئے بآواز بلند اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند داریان کی رزق عزت محنت محبت کامش انتظام انسان کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات میرے بھائیوں کی صفِ ازا آپ سب ہم سب تمام مومنین مومنات پردے میں مائیں بیٹی مستورات کی آمد آپ سب ہم سب کی آمد حاضری کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کے پڑھا کرو کیونکہ جسے صلوات پالوں پہ ایمان آ جائے نا وہ کم از کم سلمان ہو جاتا ہے تاجیل امام زمانہ کے لیے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام بتحیت والاکرام والسلام فی الوجود انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس واهل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علیہم وفضائلہم وولایت علی بن ابی طالب اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم بشہاداتہم قائمون صلوات قذابی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے خدا کی قسم گاڑی میں جب بیٹھ کے نکلتے ہیں تو تب گلا کہتا ہے جسم کہتا ہے کہ بس ریسٹ کر لے جب ممبر پہ آتے ہیں تو بادشاہوں کے نوکر اتنی محبت اور بادشاہ اتنی طاقت دے دیتے ہیں پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی دیر بولنا ہے اب بولتے رہو گے تو 40-45 منٹ پڑھ لیں گے ورنہ جلدی جلدی نوکری اور اپنے حصے کا سجدہ شکر نعرے کی فضیلت کیا ہے قذابی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے قذابی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے ہمارے ہاتھ لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں میں کھڑا ہوں ہاں باڈی پہ ہاتھ جسم پہ کالا کپڑا ہاتھ بلند یہ فریرے کی شبیہ بن جاتا ہے میں نے پڑھنا ہے علی میں نے آیات مجید آپ کی سماعتوں کی طرف ہدیہ کی ہے مجھے نہیں پتا علماء کرام اس کا ترجمہ اسے کیوں کرتے ہیں میں نے جس کا ترجمہ سنا ہے ستون ہے بہت بڑا علماء کرام میں علامہ نسیم عباس رضوی سید نسیم عباس آپ ہم سب ان کے بیٹھے ہیں میرے جیسے کروڑوں بندے نسیم عباس جوتی کے تلووں سے نکل سکتے ہیں ایک سید ایک آدمی انہوں نے کہا ہے کہ آیت ہے قرآن کی والذین بشہاداتہم قائمون اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں پر شہادت نہیں شہادات پہ قائم رہو اور شہادات کم از کم 10 سے نیچے بنتی نہیں ہے تیری موت پڑ جاتی ہے تجھے تو اگر علی کی گواہی دے دیتا ہے کہہ دیتا ہے یہ کیا ہے نبی نے گواہی دی ہے کسی اور نے گواہی دی ہے موت پڑی تھی جب اللہ کہہ رہا تھا الیوم اکملت لکم واتممت علیکم اور جب تک علی نہ ہو دین مکمل نہیں ہوتا سلامت رہے جگرینجی چھوڑنا تو زور کاٹ بیٹا توجہ کرو شاباش اگر علی نہ ہونا دین مکمل نہیں میں نے نہیں کہا قرآن کہہ رہا
اور جو قرآن کی نہیں مانتا وہ کسی کی بھی نہیں مانتا۔ ایک واقعہ غلط العام پڑھا جاتا ہے، کتاب ابھی نہ دکھاؤ مجرم، کتاب ابھی نہ دکھاؤ مجرم۔ علی ہے کیا؟ علی وہ ہے جو تجھے سمجھ نہیں آتا۔ اگر علی سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ علی نہیں رہا۔ کیونکہ علی اگر تیری سمجھ میں آ گیا تو علی نہیں رہتا، کیونکہ مدینے کا شہر القامت و ثاقبہ میں لکھا ہے دوسرا دور حکومت مدینے میں زلزلے آ رہے تھے، زمین کانپ رہی تھی، جیسے بندوں کے جگر فضا سن کے کانپنے لگ جاتے ہیں، زمین پر زلزلہ طاری تھا، لرزہ طاری تھا، لوگ بھاگ رہے تھے، کوئی اس گھر میں جا رہا تھا، کوئی اس گھر میں جا رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے ہم پریشان بیٹھے ہیں، سید مطمئن بیٹھے ہیں، سید پریشان نہیں ہے۔ ایک بندے نے کہا دین پہ جب بھی بنتی ہے سید ہی کہا باتے ہیں۔ دین پہ جب بھی مشکل بنے سیدوں کا دروازہ۔ ایک نے کہا ایسے کرتے ہیں پریشان نہیں ہوتے، اگر تو بچ گئے، سلام علیکم، اگر تو بچ گئے تو کیا کہنے، ورنہ اس دروازے پہ چلتے ہیں جہاں پہ مرنے کی بھی فضیلت ہے۔ یار سلامت رہو یار، 2-4 بندے سلامت رہے جی۔ آپ علی کا فضل پریشانی نہیں، اور علی توسیع اور مسائل کا مسئلہ نہیں، علی خون کا مسئلہ ہے۔ بھئی علی خون کا مسئلہ ہے، علی کتابوں سے ملتا، ماں کے شجروں سے ملتا ہے، ماں کے دودھ کی تاثیر اچھی ہو تو علی سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے اس نے کہا چلو اس کے دروازے پہ، اب لوگ چلتے چلتے گھبرا بھی رہے تھے، قرآن کی آیت بھی ہے، قرآن کی صورت بھی ہے، جب چلتے چلتے آئے نا تو انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں تم آگے ہو کے بات کر لینا، ہمیں شرم آتی ہے کہیں کہ یہ بادشاہ ہے، پھر علی کے دروازے پہ جیسے ہی چلے دکل باب کیا، اندر سے امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کیوں آئے ہو، کیونکہ علی ہونی کو ہونی سے پہلے جانتا ہے۔ جیسے علی رات سے باہر نکلے فرمایا کیا ہوا؟ جی زمین پہ زلزلے آ رہے ہیں، زمین پہ زلزلے آ رہے ہیں، قرآن میں صورت ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ اس وقت علی بادشاہ نے یہ تو نہیں ہاتھ رکھا، زمین سے پوچھا زمین تجھے کیا ہوا؟ زمین نے کہا مجھ پہ یہ تیرے نام کی برائی کرتے ہیں، زمین اپنے معدنیات ڈھونڈتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک انسان نے زمین پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا یا تو اس انسان کو ڈھونڈ کے دے یا پھر مان لے۔ بھرے مدینے میں علی نے زمین سے بات کی، زمین نے علی سے بات کی، اور نبی نے کہا ہے یا علی تو ابو تراب ہے، شرم نہیں آتی تراب کا بیٹا ہو کے تراب کو بھونکتا ہے۔ آپ جس طرح مختار بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں تو تُسے وچ آ گئے تے جڑے بندے علی دے فضائل تو مسکرا نہیں سکتے تے جدوں روزے محشر بادشاہ نے فرمانا تم ان کے ہوئے میرے ہیں، اوتھے تسی کہنا سرکار ہسدے سا یہ ویڈیو نہیں نہ مکرن دیندی، اوتھے علی نے بھی نہیں مکرن دینا۔ علی نے فرمانا ہے کہ اس وقت جب وقت نہیں تھا میں شجروں کو چھانک رہا تھا، علی تو شجروں کو چھانکتا ہے۔ میں نے کتاب کا نام ہے تاریخ ذوالفقار، علی کی تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے چلتی ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل ایک مرتبہ اپنے باپ کے سامنے آیا، اس نے کہا اکرمہ جب باپ کے سامنے آیا نا تو باپ نے کہا تو میرا بیٹا نہ ہوتا میں تجھے چھوڑتا نہ۔ اکرمہ کہتا ہے اگر میرے سامنے تو آ جاتا میں تجھے مار دیتا، اس لیے کیونکہ میں علی کا دیا کھاتا ہوں۔ دو محمد حنفیہ ہے، ایک اہل سنت کے امام ہے، ان کا نام ہے امام ابو حنیفہ۔ دو حنیف مشہور ہے، ایک نام ابو حنیفہ برادران اہل سنت کے امام، ایک ہمارے مولا علی کے بیٹے کا نام محمد حنفیہ ہے، حنیف نہیں۔ ہاں
किताब का नाम है मुसात आले मोहम्मद। गलत आम बात जो बच्चों को भी सुनी और मैंने भी सुनी है बुजुर्गों से, और बंदे पता कि अली का फजाइल पढ़ते नहीं। इजाज़त भाई जी, मौला अली की एक औरत से जंग हुई, अली होता ही नहीं वो जो औरतों से लड़े। अली मर्द है और मर्द मर्दों से लड़ते हैं, औरतों से वो लड़ते हैं जिन्होंने फज़ाइल अमाल में भी लिखा है। जी औरत से जंग की, उसे गिरा दिया, वो गुम हो गई। मौला ने रुमाला और मुद्रा दिया, एक बेटा पैदा हुआ। यानी कि फजीलत अली नहीं, ये तौहीन मौला अली है। मैंने ये सुना भी है, बुजुर्ग कहते भी हैं, हालांकि इसकी हकीकत कुछ और है, मुझे नहीं पता कौन कौन दाद देगा। अब्बास भाई, मैंने भाई इसलिए कहा है, अली वाले सारे जवान होते हैं, क्योंकि जन्नत में भी कोई बूढ़ा या बच्चा नहीं जाएगा, जब भी जाएंगे जवान जाएंगे। मजलिस में भी अली का जिक्र बूढ़ों को जवान कर देता है, जवानी अली का इश्क देता है। मोहम्मद हरफिया दूसरे दौरे हुकूमत में जब हुई, कबीला हट से जैसे हुई, एक मजदूर को, एक औरत को कैद करके लाया गया। भरे दरबार में 900 कुर्सी लगी थी। अरब का दस्तूर था, जो बंदा अपनी हवा जिसमें डाल देता था वो कनीज हो जाती थी। भरे दरबार में उस बीबी पे नाम खाला बिनते हनफ था, उसको ऊपर डालेंगे। उसने दूर फेंक के कहा, जब करो मुझ पे चादर वो डाले जो सवालों के जवाब दे। ओके सलामत बेटा, कल से कोशिश करिएगा कि जितने दोस्त बैठे हैं बच्चों को थोड़ा सा पीछे बिठा दिया करें। हालांकि ये दरसगाह है, यहाँ से सबक लेना चाहिए, मगर थोड़ा सा समझाएंगे तो समझ आएगी, क्योंकि बच्चों भी बड़ों की अकल के मुताबिक होते हैं। मैंने एक हदीस पढ़ी है कि जब बंदा बूढ़ा हो जाता है ना, बच्चों जैसा हो जाता है, क्योंकि नबी के ज़माने में भी कुछ बूढ़े बच्चों जैसी हरकतें करते थे। आप जी सलामत रहे, आप सदा सलामत रहे, जिन्हें फज़ाइल अली सुन के जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट आती है। आज जाके अपनी माँ के कदमों को चूमना। अम्मा, नबी की हदीस तुझे देखने के बाद अच्छी लगती है, क्योंकि नबी का फरमान है ना, ला युहिब्बुल्लाह का इल्ला हलाली। अली तुझसे मोहब्बत ही वो करेगा जिसकी माँ सहके किरदार होगी, क्योंकि नबी ने हद जारी कर दी है। कोई अली का फज़ाइल सुन के माथे पे शिकल आए ना तो परेशान ना हुआ करो, क्योंकि जब नबी ने कह दिया है तो फिर गुलाम नबी कहते तो क्या बात है। जैसे खाला बिनते हनफ भरे दरबार में आई, दूसरे दौरे हुकूमत, एक बंदे ने अपनी चादर उतारी, खनीसी में लेना है। उस बीवी ने दूर फेंक के कहा, मैं तो सारी और यहाँ नहीं खड़ी, बेपर्दा नहीं खड़ी, बेबकरा नहीं खड़ी, मुझ पे चादर वो डाले जो मेरे पैदा होने से लेके आज तक के जवाब दे। फज़ाइल नहीं पढ़ रहा, पैदा होने से लेके आज तक के जवाब दे। अब भरे दरबार में चुप लग गई। जैसे कुछ लोगों को फज़ाइल अली पे चुप लग जाती है, मजलिस में होते हुए भी परेशान होते हैं, कितने फंस गए। भरे दरबार में चुप। एक बंदे ने आखिर में कान में जाके कहा, सरकार अली को बुला ले। हम सबको नहीं बोलने देंगे। उनमें से जब कहा ना अली को बुला ले, मुसात आले मोहम्मद जल्द नंबर 1, अब भी गाड़ी से ना दिखाऊं तुम्हारा मुझे। जी एक बंदे को भेजा अली के दरवाजे पे, मौला दीन पे मुश्किल बन गई है, मुश्किल कुशा जो हुए आ जाए। मौला मस्जिद में भरा दरबार, हक्का बक्का। अब पता
चलेगा ले क्या कहते हैं, अब मुझे भी पता चलेगा ले कैसे वसूल करते हो, वरना मैं अपने हिस्से की नौकरी करके चला जाऊंगा। बाद में इजाजत भाई कहेंगे जल्दी जल्दी मैं पर छोड़ देते हो बंदा खुदा। जैसे अली ने कहा ना, अली ने कदम रखा लोग देख रहे थे, अली ने दूसरा कदम रखा लोग देख रहे थे। अली इसके करीब जाकर फरमाते हैं मैं बताऊंगा तू बात शुरू करती है, मैं बताऊंगा तू बात शुरू करती है, मैं बताऊंगा तू बात शुरू करती है। मलंग जी क्या कह रहे हैं, मैं बताऊंगा तू बात शुरू करती है। वो चुप हुई, अली बोलने लगा जब तू अपनी माँ की शिकम में 3 महीने की थी, तेरा बाप मर गया, तेरी माँ ने कहा ये बच्चा मनहूस है। जब तू अपनी माँ की शिकम में 4 महीने की थी, तेरे कबीले पे कहत पड़ा, तेरी माँ ने कहा ये बच्चा मनहूस है। जब तू अपनी माँ की शिकम में 7 महीने की थी, तेरे कबीले से जंग हुई, सारे मारे गए। उस वक्त कहा ये बच्चा बड़ा मनहूस है। जब ये बात हुई, उसकी माँ ने एक सुनार को बुला के कहा सोने की पतरी पे एक लफ्ज कुंद कर दो, ये बच्चा मनहूस है, ये बच्चा मनहूस है। जब ये लफ्ज कुंद हुए, उस वक्त उसकी माँ ने कहा 2 साल की हुई, उसकी माँ ने उसके सरहाने रखी। 4 साल की हुई, उसके सरहाने रखी। 5 साल की हुई, माँ ने उसके गले में पहना दी। 8 साल की हुई, माँ दुनिया से जाने लगी, बाला खाना के पीछे रखी। अली भरे दरबार में कहने लगा अगर अब अली तुझे कहे कि वो इस वक्त कहा है दिखा सकती है, अली ने कहा अपने बातों से वो खोल के दिखा, वरना अली दिखा भी सकता है बना भी सकता है। भरे दरबार में अली शहंशाह ने कहा दिखाती है। उसने अपने बाजू से उस पतरी को उतारा, कहा ये ले। भरे दरबार ने कहा अली तुझे कैसे पता? सलामत रहेगा कि 5-7 बंदे जिन्हें या तो समझ आ रही है या अंदर से इश्क मचलता है, क्योंकि फज़ाइल अली पे मुस्कुरा भी करो, बोला भी करो। जब तक तुम्हारे दरवाजे पे फकीर आके यूं ना करे खैरात नहीं मिलती, जब तुम अली के फज़ाइल पे मुस्कुरा के यूं करते हो ना तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसके हाथ की लकीरों पे जो नहीं है वो लिख दे। बड़ा मुतकब्बर है वो बंदा जो रोटी के लिए तो हाथ बढ़ा सकता है, अली के लिए नहीं उठा सकता। अपने मांगने के लिए तो कह सकता नहीं, अली के नाम पे नहीं। और अली के नाम पे हर बंदे का रफ्ता भी नहीं है। नबी ने गदीर में बता दिया था हाथ उसी का उठेगा जिसके बाप यहाँ बैठे हैं। बंदे करो कसमा खा के आते हैं कि मैंने आज जाकिर के साथ नहीं बोलता, जो हाथ में उस पे नहीं उठता, घर में बिजली का बिल बढ़ता, मैं नहीं सकता पंखे बोलते न चलाओ। जो बंदा अली के फज़ाइल पे नहीं बोल सकता वो घर में लड़ के बोलता है, क्योंकि अली पे बोलने के फायदे 2 है। एक तो फज़ाइल बढ़ते हैं और मेरे मौला का फरमान है अपनी बीमारियों का इलाज हमारे जिक्र से किया करो। जब अली अली करोगे कलूब हम मारसो, दिलों में बीमारियां नहीं रहेगी। जो नहीं बीमार रहना चाहता वो अली अली करे। जो कल भी मरता था वो अब भी मरता है, जो अली से दूर है। वो कल भी मुर्दा था, वो अब भी मुर्दा है। जो अली से दूर है, अली रिश्ते बनाता है, अली रिश्ते बचाता है, अली रिश्ते बनाता है, अली रिश्ते बचाता है। क्योंकि बंदे रिश्ते बनाते हैं कच्चे होते हैं, अली बनाता है पक्के होते हैं। क्योंकि हम अगर किसी बंदे से रिश्ता बनाते हैं ना जी, अली वलीउल्लाह का, तो जब रिश्ता बनाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा रिश्ता ही यही है। पराए देश में अपनों की खूब सूख लेते हैं, अली वाले अली वालों की खुशबू सूख लेते हैं। मुसलमानों की आंखों को न जाने क्या हुआ माथल, अली वाले अली वालों की खुशबू सूख लेते हैं। अली का फज़ाइल मजबूरी नहीं, अली का फज़ाइल ज़रूरत है। क्योंकि अली ज़रूरत अंबिया का नाम है, अली मुश्किल कुशा है, अली शाह हाल अता है, अली महबूब रब्बे खुदा है, अली महबूब किबरिया है, अली बतूल का शौहर है, अली हसनैन का बाबा है, अली फातिहा खैबर है, अली फातिहा उहद है, अली फातिहा खंदक है, अली साहिब ज़ुल्फ़िकार है,
अली साहिब इन्नमा है, अली लहमों का लहमी है, अली दमों का दमी है, अली जिस्मों का जिस्मी है, अली रूहों का रूही है, अली कल्बों का कल्बी है। बंदा खुदा अली को तुम तब छोड़ेगा ना अगर अली ने नबी को छोड़ा होगा। नबी कह रहा है या अली जो जो मैं हूँ वो तू है, जो जो मैं हूँ वो तू है। अगर नबी पाक है, अली पाक है, नबी ताहिर है, अली ताहिर है, नबी पाक है, अली पाक है, नबी हक है, अली हकीकत है, नबी तफसीर है, अली तावील है, नबी हकीकत है, अली शरीयत है, नबी शरीयत है, अली वकालत है, नबी अदालत है, अली हकीकत है। बंदा खुदा जहाँ जहाँ में दीन ढूंढेगा वहाँ वहाँ अली मिलेगा। अगर अली है तो इसका मतलब है तेरे पास नबी है, क्योंकि नबी ने कहा है जहाँ जहाँ मैं मौला हो वहाँ जहां जहां मैं मौला, जहां जहां मैं मौला, वहां वहां नहीं मौला। बात थी हमारी जनाब सलमान, एक जुमला सीने पे सलमान और दो जुमले में साहब को तमाशे हो। आपके 20 मिनट गुजर चुके हैं, क्योंकि 40-45 मिनट की नौकरी होती है। हुसैन के बुलाए हुए मेहमान यार तेरे इलाके का एमपी तो बुलालो में बड़े चौड़े होके जाते हैं। एमपी साहब में सदे है भाई, एमपी तो वो है कुर्सी छन जाए तो एमपी नहीं रहता, अली वो है कुर्सी ना भी खुद वली है। सलाम करो मेरा भैया, अली बगैर मिंबर के भी अली है, अली बगैर कुर्सी के भी अली है। सलमान का नाम है आमिर इब्न मम्बा, क्योंकि कल वादा किया था जनाब सलमान का हुक्म था भाई का एक फदाई का जुमला, और इसके बाद जनाब अमीर मुसलमान नाम है आमिर इब्न मम्बा। 350 साल या 550 साल के सहाबी, कम व बेश 350 साल का जवान, जवान के नाम पे जवान बोला है। आप सी तारीख में पढ़ा हुआ था, क्योंकि कुरान में और अंजील में तारीख है। अंजील में लिखा है इसको अहमद एक वादी फौरान पे नूर चमकेगा, उस नूर का नाम अहमद होगा, मोहम्मद नहीं। सलाम है ईसाइयों को जो अहमद को मोहम्मद मान लेते हैं, हैरत है मुसलमानों को मोहम्मद को जो अपने जैसा कह देते हैं। उन्हें ये पता है कि नहीं मोहम्मद है जो नूर है। जनाब सलमान तहकीक करते करते थका नहीं, परेशान नहीं हुआ, तहकीक करते करते पहुंचे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा तक। उसे किसी ने बताया कि वो जगह है जहाँ पे इसमें अहमद मोहम्मद आ गया है। अपनी किताबों में पढ़ा और उसने जब पहली बात पढ़ी ना, नफीस जुमला है बारीक लोगों के लिए, उसने जब पढ़ा ना तो उसने 3 तश्त भेजे। कितने भेजे? अब 3 थे ना, नबी ने कबूल नहीं किए। पहला तश्त भेजा और कहा तवाफ़ रसूल करके, या रसूल अल्लाह ये सदका है, बुखारी शरीफ तक का महज़ाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबियों को दे दे, क्योंकि हम सैयद हैं, सैयद सदका नहीं खाते, क्योंकि कायनात बनी है सैयदों का सदका। अब जिनका सदका पहले दुनिया खाए वो माने या ना माने, नमक हराम में जरूर करते हैं। सरकार ने फरमाया सहाबियों को दे दे। सलमान ने दश्त सहाबियों को दिया। अल्लाह के नबी के पास थोड़ी देर के बाद फिर सलमान आया, चक्कर निकाला, सरकार ये फिदिया है, आपने फरमाया गरीबों को दे दे। वो तश्त दे के चला गया। तीसरी मर्तबा फिर आया, तवाफ़ रसूल किया। हम तो तवाफ़ काबा करते, अल्लाह जाने सलमान का इश्क कैसा है। तवाफ़ रसूल किया, कहा सरकार ये तोहफा है अहले बैत के लिए, तोहफा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अहले बैत के हसन और हुसैन को दे दे। इसी मुस्लिम में लिखा है, इसी बुखारी में लिखा है, अल्लाह के नबी ने जब पहली मर्तबा खजूरें आई ना, इमाम हसन बच्चे थे, वो इतनी मोहब्बत से लिख रहे हैं, मगर उनके लिखने में हमें बड़ा फायदा हुआ है, हमें बड़ा पता चला है। वो कहते हैं कि बचपन थे, बचपन का हालत था, एक खजूर हसन ने उठा के मुंह में डाल ली, अल्लाह के नबी ने उंगली डाल के बाहर निकाल के कहा सैयदों पे सदका हराम है, इन पे जायज है, सैयदों पे हराम है,
इन पे जैद है, सैयदों पे हरम है, इन पे जल्द है, और जो सदका खाए वो और है, जिनका खिलाए वो और है। जैसे ही सलमान ने दश्त दिया, सलमान का दलाल मुस्तफा पे क्या कहने लगा, सरकार इसी दिन का इंतजार था, नाम है आमिर इब्न मंबा, आपकी गुलामी चाहता। आपने फरमाया सलमान किसका गुलाम है? उसने कहा यहूदी का। आपने फरमाया चाहे यहूदी से पूछ के कैसे तुझे आजाद करेगा। अब सलमान गया, शिया मसले में वो चीज ऐसी है कि नहीं कि हम फजाइल नहीं पढ़े तो दिखा ना सके। मेरे मौला ने जिन्स बदली है, कल पढ़ के सुनाऊंगा। मैं तेरे पूरे बिहारी में ना दिखाऊं तीसरी मखलूक, तो फिर हुसैन का जाकिर तो ना हुआ। ये जो फजाइल है अगर अभी तेरे शहर से ना दिखाऊं तो फिर कल मिंबर पे ना ले देना। जे वेख के जान के पहचान के तू ना मन्ने ते अल्लाह करे तेरा अंजाम यो ना वर्गा में जेड़े सोचते सन। जैसे जनाब सलमान ने कहा, अच्छा मौला, सलमान भागा गया, यहूदी से जाके कहते कैसे रिहा करेगा मुझे, कैसे आजाद करेगा। उसने कहा ऐसे कर, 100 मशकाल सोना। इतना फरमा, हाँ 100 खजूर का दरख्त फलदार दे जा, चला जा। बिहार उलमार में मौसाद मोहम्मद में ये लिखा हुआ है, 14 सितारे नजमुल हसन करारवी में भी लिखा है। जैसे जनाब सलमान ने कहा ना, चलो मैं बात करता हूँ। अब सलमान परेशान था, मगर सलमान को पता नहीं था मोहम्मद मुस्तफ़ा वो है जो अर्श से उला तक जिनका हाथ जाता है, जो फर्श पे खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अब जैसे सलमान आया, सलमान कहने लगा या रसूल अल्लाह, उसने 100 मशकाल सोना मांगा है और 100 खजूर के दरख्त मांगे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यहूदी से लिखवा ला, क्योंकि ये कमीने सुनते भी है मगर मानते नहीं, ये सुनते भी है मानते नहीं, ये सुनते भी है मानते नहीं। जिन्होंने सुनते थे मनने वाले नहीं समझ आई। हर गल खतीब तो खुलवाया ना करो, बात चेती में क्या मैं क्या सी। मैं अक्सर की बात करता हूँ, खुदा की कसम, रसूल की कसम, बादशाह महासिकर की कसम। एक जगह पे मजलिस के लिए गया तो बंदे ने कहा कि यार इत्थे लाता नहीं पानियां, साढ़े रिश्तेदार दूसरे ने। मैं कहा ठीक है, मैं कह बैठे दुश्मन तो लाना। तो मतलब चाचा उठ के बाहर चला गया, बैठा मैं जाके सलाम रोज मिला। मैं कहा की होया जी? मैं कहा तेरे नाल पुत्र गल नहीं, मेरी तो उन्हां नाल गल नहीं, घरे साडे गलांता पाउंदे ने। मैं कहा जिस दुश्मन ते पाई उन्हें विचों इन्हां नूं पता है कि मसीह है। और पता इनको भी है कि अंदर से वो कौन है। असी नाम नहीं लेते मगर खुद आख दे रहे कौन है। जैसे जनाब सलमान गए, यहूदी ने कहा ठीक है, मौलावी ने कायनात फरमाते हैं सलमान ऐसे कर। वो सामने से पत्थर उठा के, सलमान पत्थर उठा के लाया। मौला मोहम्मद मुस्तफा फरमाते इस पे आए मदद कहते सोने का हो जाएगा। सलमान ने वो पत्थर पे अल्लाह जाने के इतनी मोहब्बत से मुअत्तस से तरीके से सलीके से पत्थर पे कुछ पड़ा, पत्थर सोने का हो गया। सलमान कहता मौला ये कितने वजन का है? आपने फरमाया जितना उसने मांगा है उतना है, जितना मांगा है उतना है, जितना मांगा है उतना है। सलमान ने जाके दे दिया। यहूदी से कहा कहां दरख्त लगाओ। आज मदीने में भी बागे सलमान फारसी है ना हो तेरा मुजरम हो। मोहम्मद मुस्तफा अली मुर्तजा से कहते हैं चल। नबी ने गुठली पकड़ी, नबी अपनी उंगली लगाता है पत्थर पे, पत्थर मोम की तरह हो जाता है। अली गुठली डालता है, सलमान पानी डालता है, 100 दरख्त लगाए। रात को यहूदी के दिल में ख्याल है अल्लाह जाने ना उग न जाए, बड़ी ना हो जाए, गुठलियां निकाल के ले गया। अब मुझे नहीं पता किसके अंदर गुठली है किसके नहीं है। जैसे वो ले गया, दूसरे दिन भरे दरख्त पड़े हैं फलों से, आके परेशान होकर कहता है ये क्या हो गया। अब एक एक खजूर को देखता है, बिल्कुल सही है, अल्लाह के नबी है। फरमाया अब तो सलमान को आजाद करता है ना। उसने कहा मैं देख के बताऊंगा। खजूर को खोला, गुठली नहीं थी। कहने लगा ये नाकस है। अली फरमाते हैं तेरी बात तेरे घर में रहे, जिस गुठली को तू घर ले गया है हम चाहे तो वहीं पे भी हो सकती है। दिल तो मेरा नहीं चाहता खुदा की कसम, मैं तो घंटा भी और पढ़ता हूँ। इंशाअल्लाह 12
کہ رات بار آ گئی. یار چپ کر دو، دکھ لگتا ہے. آتے بھی حسین کے گھر پہ ہیں اور حسین کے باپ کے نام پہ بولتے بھی نہیں. بچہ جب جنت حسین کی مانگتے ہیں اس وقت سوچے کہ مولا تیرے نام پہ بول دیتا ہے نہیں. اگر ذاکر دیکھ کے بولنا ہے تو نہ آیا کر، کیونکہ حسین کو تیرے نام سے فرق نہیں پڑتا. کیونکہ مجلس در سگا ہوگا کہ ہم جتنا احتجاج کرتے ہیں یہ صرف یزیدیے کے خلاف. میں نے مقدمہ پڑھنا ہے التماس و ساکبہ سے. مقدمہ ایسا ہے صبح قیامت تک نوکر کو دعا دو گے. ایک لمحے میں فیصلہ ہو جانا کون حق ہے کون باطل. ایک لمحے میں پڑھنا ہے ابھی، آج نہیں. اگر سنو گے اسی طرح تو پڑھتے رہیں گے. کیونکہ ذاکر ذہنوں پہ بوجھ بننے کا نام ذاکر ہی نہیں، محبت کا نام ہے. ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، نہ ہمیں کچھ ضرورت ہے. کوئی عالم ہو، کوئی ذاکر ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی مجتہد ہو، کوئی آیت اللہ ہو، کوئی بھی ہو، جو آل محمد سے محبت کرتا ہے ہم اس کی جوتی کے نوکر ہیں. جو اپنے آپ میں بڑا عالم بن کے علی پہ فتوے دے ہم اس پہ طلب لعنت کرتے ہیں، اس پہ یاد بھی کرتے ہیں. کیونکہ کائنات میں کوئی عالم ایسا ہے ہی نہیں. اور تہذیب آل محمد نے مولا صادق کا فرمان ہے عالم صرف ہم شعبہ ہیں. کیونکہ جو دنیا پہ آ کے علم حاصل کرے وہ عالم نہیں. واللہ اخرجاکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں تمہاری ماں کے شکموں سے جاہل پیدا کیا. تو جو عالم بن کے ہیں وہ اور ہے، جو جہاں پہ آ کے بنے وہ اور ہے. بس سمیر حسین 10 رمضان کو حسین نے کہا مسلم میرا سفیر بن کے کوفہ چلا جا. جناب مسلم نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا اگر تیرا یہی حکم ہے تو میں حاضر ہوں. فرمایا مسلم 7,000 سے زیادہ خطوط میرے پاس آ چکے ہیں. 7,000 سے زیادہ خطوط آ چکے ہیں میرے پاس. تو میں چاہتا ہوں میرا سفیر بن کے تو چلا جا. جب مسلم سے کہا میرا سفیر بن کے چلا جا تو اس وقت جناب مسلم گھر آئے. احسان مانا کرو علی کی بیٹیوں کا. ایک 2 بیٹے تھے دونوں قربان کر دیے کہ 4 تھے چاروں قربان کر. جس نے 4 بیٹے قربان کیے وہ ملکہ لاہور ہے. جس نے 2 بیٹے قربان کیے وہ ثانیہ زہرا ہے. خدا کی قسم یہی منظر ہے کربلا میں گنج شہداء پہ جہاں پہ راسل حسین پتھر پڑا نا جس پہ اس کتے نے امام کے سر پہ ضربے چلائی. وہاں کسی طرح سرخ رنگ کی لائٹ جل رہی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، مولا تمہیں بھی دکھائے. ہائے کرنا تمہارے بس میں ہے کیونکہ آج کے دور میں جو نصرت حسین کے لیے ہائے بھی نہیں کر سکتا. اس سے بڑا اس بندے پہ دکھ ہو ہی نہیں سکتا کہ سن کے بھی ہائے نہ کرے. پھر تو کبھی نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں کربلا میں ہونا تو یہاں پہ ہو کے ہائے نہیں کر سکتا. بڑا نفیس بندہ ہے. جب چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو جناب مسلم گھر سے لائے نا، ایک کا نام محمد ہے ایک کا نام ابراہیم ہے. امام نے فرمایا مسلم انہیں کیوں لایا ہے؟ رو کے مسلم کہتا مولا یہ میرے بغیر رہتے نہیں، مولا یہ چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں میرے بیٹے ہیں. امام نے فرمایا جا مسلم لے جا، ان کا بھی خدا حافظ ہے. جناب مسلم لے کے چلے. لمبی تفصیل ہے دونوں شہزادوں کے رباب کی. 10 رمضان کو چلے. ہماری سبتائن میں سید محمد مادی مازندرانی لکھتے ہیں 10 رمضان کو چلے 20 رمضان کو پہنچے. رمضان عید الفطر عید الاضحیٰ تک رہے. اب 8 محرم کو جب مسلم مسجد کوفہ میں تھے تو 18,000 لوگ تھے. 9 ذی الحجہ کو مسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو صرف باپ اور بیٹے تھے. امت نے ساتھ چھوڑ دیا. جیسے مسلم کا ساتھ چھوڑا نا جلدی 10 یا 12 منٹ کے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. اب مسلم تنہا ہے بے یار مددگار کوفے کی گلیوں میں. عبید اللہ بن زیاد خدا اس پہ لعنت کرے. مختار ہے قید خانے میں. 56 سیڑھیاں ہیں زیر زمین. علی کا بپرا ہوا شیر ہے قید ایسے گلے میں توق لنگر. عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے میرے دربار میں کوئی ہے جو علی کا نام لے. زید بن ارقم صحابی نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے اگر تیرے قید خانے سے مختار آ گیا نا پھر تجھے پتہ چل جائے گا کہ علی کا نام لینے والا کیسا ہوتا ہے. مختار رو رو کے کہتا تھا مولا تو اجازت دے دیتا نا. جناب مسلم
9 ज़िलहिज्जा को तन्हा रह गए। जैसे मुस्लिम तन्हा रह गए, कभी कूफे की उस गली में जाते हैं, कभी उस गली में जाते हैं। मुस्लिम मौत से नहीं डरते थे, क्योंकि हुसैन का हुक्म था कूफे में रहना है मुस्लिम। जैसे कूफे में मुस्लिम रहा है ना, अल्लाह जाने ऐसे कौन रहा है। जनाब मुस्लिम को मारने के लिए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने पहले 500 सिपाही भेजे, फिर 1000 भेजे, यानी 1500 सिपाही अकेले मुस्लिम को मारने के लिए आए। हर गली में मुस्लिम को ढूंढ रहे थे। जनाब मुस्लिम जैसे ही एक दौला नामी औरत के दरवाजे पे गए, उससे पहले मुस्लिम पे हमला हो चुका था। जनाब मुस्लिम के चेहरे से खून निकल रहा था, लबों से खून निकल रहा था। जनाब मुस्लिम ने कहा मुझे पानी पिला दे। उस बढ़िया ने पानी दे के कहा तुम कोई मुसाफिर है ना, अपने घर चला जाओ, तुझे नहीं पता सफीर हुसैन को ढूंढ रहे हैं और ढूंढ के मार डालेंगे। जब सफीर हुसैन का नाम आया ना, मुस्लिम की आंखों से आंसू जाने हुए। वो बुढ़िया कहती है तो उससे सैयदों जैसी खुशबू आती है, बता तो सही तू हुसैन को जानता है? सफीर हुसैन कहता है और जैसे मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता। जब कहा ना जैसे मैं जानता हूँ, तो वो नामी औरत ने पूछा कैसे जानता है? फरमाया मैं ही सफीर हुसैन हूँ। जनाब मुस्लिम ने कहा ना जब मैं सफीर हुसैन हूँ। बुढ़िया कहती अंदर आ जा। मुस्लिम कहता मेरी गैरत गवारा नहीं करती, और अगर फौज तेरे घर में आ गई, मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी। अगर फौज तेरे घर में घुस आई, मुस्लिम पे हमला होने लगा। जब मुस्लिम को चारों तरफ से घेर लिया ना, एक कुत्ता जाके कहता है सैयद है, सैयद को जब भी मारना हो पुष्ट से वार करना, सामने से न मारना। उन्होंने एक गड़ा खोदा, जब बस आखिरी 2 जुमले, एक गड़ा खोदा मुस्लिम को मारने के लिए। अब लड़ते लड़ते मुस्लिम को धकेल रहे हैं। आखिरकार मुस्लिम का पांव उलझा, गले में मुस्लिम गिरा। कोई पत्थर मारता था, कोई तीर मारता था, कोई नेज़ा मारता था। अल्लाह माना सरबाज फरमाते हैं जब मुस्लिम पे सारी चीजें पड़ती थी ना, पत्थर पड़ते थे, आग पड़ती थी, पानी पड़ता था, मुस्लिम रो के कहता था अगर मेरा कासिम होता, अगर मेरा गाजी होता, अगर मेरा हुसैन होता, अगर मेरा अकबर होता, और मैं देखता और तुम कैसे मारते हो मुस्लिम को। जैसे यजीद के दरबार में ज़ियाद के लाया गया, मुस्लिम को कहा अब मुझे अमीर कह के सलाम कर। मुस्लिम कहता मेरा अमीर हुसैन है। मंजिल शौक पे कब्ज़ा तलवार पे हुसैन की पेशानी थी। हुसैन ने कहा अब मुस्लिम तूने दुश्मन के लड़के में अब मुझे अमीर कहा है, और कयामत तक तुम अमीर हुसैन है और मैं गरीब ज़हरा। मुस्लिम का सरदार उलमारा की छत से नीचे फेंकने के लिए गाजी ने कहा मौला और एक लम्हे तक वापस आ दे, छत ऊंची है। रोके हुसैन ने कहा मुस्लिम का सर उठाने के लिए, और मेरी माँ और कल रात से खड़ी है। आ मेरा सफीर हुसैन, आ मेरा वकील हुसैन। बात नहीं हुसैन